Hi, guys. Again, reintroducing myself for the people who have just joined us. My name is Pulki Mittal. I have been teaching Eco Honors students from across the globe for the last 18 years. I'm an Eco Honors gold medalist myself. I've also done MA Eco from Delhi University. I've also done MA Eco and I've done an MBA in finance as well. All right. So today I'm going to introduce the subject of macro to you, which is your SEM 3 macro. It is also called Intermediate Macroeconomics 1, Foundations of Aggregate Income Determination. So I'm only going to discuss the syllabus and how we are covering it in this particular class. And from next class onwards is when हम अपना officially syllabus start करेंगे. So our unit 1 is basically short run and medium run equilibrium. Short run and medium run equilibrium. So when you study the syllabus, you will realize that हमारे पास जो मैक्रो होता है उसके अंदर तीन तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं. वन इज योर शॉर्ट रन, सेकेंड इज योर मीडियम रन एंड थर्ड इज योर लॉन्ग रन. तो यूनिट 1 जो है बेटा हमारा वो कवर करता है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन और मीडियम रन इक्विलिब्रियम. In this, we are studying the reading of Blanchard. Blanchard is one of my, at least personally, one of my one of my favorite books, one of my closest to heart books. It's very, very nicely written, beautiful explanation. All of that is very, very bang on. So we do chapter 6, page number 117 to 138. And we do chapter 7, page number 139 to 163. ऑफ कोर्स हम लोग सारी की सारी चीजें आपके नोट्स में साथ साथ कवर करेंगे, वीडियोस में कवर करेंगे. सो यू डू नॉट हैव टू बाय द रीडिंग्स एट ऑल, बट इफ यू वांट टू देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड जस्ट रीड थ्रू इट इफ यू वांट. पर अगर आपको लगता है कि नहीं, आई डोंट हैव द काइंड ऑफ टाइम और वट एवर, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बाइंग द रीडिंग. इट्स नॉट, you don't need to have, but if you want to, you should. Okay, so this is my unit 1. Unit 1 is short run and medium run equilibrium. हमारे पास chapter 6 of Blanchard, chapter 7 of Blanchard. Unit 2 is Phillips curve and theory of expectations. Theory of expectations. Very, very important. Actually, each of the units are important, and of course, ये जो सारी चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो मैक्रो सेम 3 के अंदर, वो आपका एक बेस फॉर्म करेंगे मैक्रो सेम 4 के लिए. एंड इफ यू वांट टू लेटर ऑन टेक मैक्रो एज अ disciplinary paper as well, like not a discipline, sorry, is not a as a non-core paper also, then also you would need all of these things. इसके अंदर we have different books. We have Blanchard chapter 8 to 9, of course, क्योंकि Blanchard आपके एक running में 4 book है. Chapter 8 to 9, pages 165 to 202. Then you have chapter 14, pages 292 to 294, and 300 to 308. And you have Demry and Duck. Pages 6 to 9, 18 to 28, and you also have Shefflin. Pages 33 to 40. So unit 2 हमारा काफी लंबा है. Unit 1 was a little small, unit was bigger. For the indicative, this is like 12 lectures, this is 15 lectures. And then, of course, let me talk about unit 3 as well. So unit 3 is the last unit of the syllabus. Let me just make a space here. Unit 3 is your microeconomic foundations of macroeconomic behaviors. जिसके अंदर बेसिकली हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट स्टडी करते हैं, बट हम ये स्टडी करते हैं फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव. तो यूनिट 3 इसलिए है बेटा बिकॉज यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपने कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो में ऑलरेडी स्टडी कर लिया होता है. So when you study consumption in micro and when you study consumption in macro, you will appreciate how different they both are. माइक्रो का कंजम्पशन बिल्कुल ही अलग है और मैक्रो का कंजम्पशन बिल्कुल ही अलग है. माइक्रो में कंज्यूमर होता है जो कंजम्पशन करता है. आई एम अ कंज्यूमर, इट्स अबाउट मी, माय साइकोलॉजी, दैट इज माइक्रो.
कंजम्पशन बिहेवियर जब आप मैक्रो में स्टडी करते हो तो आप ये नहीं बोलते कि मेरा कंजम्पशन क्या है, आपका कंजम्पशन क्या है। हमारा कंजम्पशन होता है सबका, ईच एंड एवरी पर्सन इन द इकोनॉमी इज कंजम्पशन of each and every good in the economy. That's macro. So if I say पूरे की पूरे इंडिया की डिमांड ऑफ शूज, that's not macro, that's micro. पूरे की पूरे इंडिया की डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, that is macro. So unit 3 is about microeconomic foundations of macroeconomic behaviors. So consumption, investment, हम study करते हैं from a single consumer perspective, but ये भी अलग होता है as compared to micro, because we want to then understand consumption of everyone in the economy, right? So unit 3 is of course 18 lectures. It's one of the biggest units and very, very important ones as well. You have a reading Branson, पेज नंबर 239 टू 268। इसमें से हमारा जो एक सेक्शन है परमानेंट इनकम एंड अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस का, वो एक्सक्लूडेड है। देन यू अगेन हैव ब्रांसन फ्रॉम पेज नंबर 268 to 273, excluding the section on choice section and disequilibrium. इसकी more important reading है Jones, which is chapter 17, which is page number 470 to 495. And this, like I said earlier, is almost 18 lectures. So this is how my 3 units are divided. हमारे पास जो 3 sections हैं, उसके अंदर हमारा जो पेपर डिजाइन है वो कैसे होगा। दिस इज माय कोर्स, लेट्स अंडरस्टैंड द पेपर, द एग्जाम। तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट है, जो हमारे इस सेमेस्टर का एंड एग्जामिनेशन है, वो 90 मार्क्स का है, और उसमें तीनों यूनिट्स की रफली स्पीकिंग इक्वल वेटेज है। इक्वल वेटेज है मतलब 30 मार्क्स ईच। हमारे पास जो मैक्रो का पेपर है वो सेक्शन ए, बी एंड सी में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे बेटा, विच आर योर 15 एमसीक्यूज, एंड जिसके लिए आपको 1 लाइन आंसर एक्सप्लेनेशन देनी है अपने आंसर की, एंड दीज आर वेड एट 2 मार्क्स ईच। ये वाला जो सेक्शन होता है बेटा, इसके अंदर कोई चॉइस भी नहीं होती, विच इज वाई अगर आपको कहीं पे भी किसी भी चीज में सिलेबस में कहीं ना कहीं आपको कोई भी गैप है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, मेमोरी में, तो इसका अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ये तो आपके मार्क्स एनीवे सैक्रिफाइस हो ही हो गए। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 6, इसमें हमारे पास चॉइस होती है क्योंकि हमें 6 आंसर करने होते हैं आउट ऑफ 8, एंड दे आर वेड एट 5 मार्क्स ईच। दे आर वेड एट 5 मार्क्स ईच। सो क्योंकि मेरे पास चॉइस है तो थोड़ा सा फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। सेक्शन सी बेटा इज 3 out of 4 questions, and these are weighed at 10 marks each. These are weighed at 10 marks each. तो इस तरीके से मेरा जो सेक्शन सी है दैट इज वर्थ 30 मार्क्स। Section B is weighed at 6 5s are 30 marks. Section A is weighed at 15 into 2, 30 marks, making it a total of 90 marks. And that is what I said, end semester examination is of 90 marks. Internal assessment जो है वो 30 marks की है, जिसमें 6 marks आपके attendance के होते हैं, और 25 और 24 marks जो है वो एटलीस्ट आपके 2 एग्जाम्स के होंगे, 2 टेस्ट के होंगे of 12 marks each. And of course there's a continuous assessment of 40 marks, जिसके अंदर 5 marks आपके attendance के होंगे, so total 11 marks is what you have for attendance, and 35 marks are based on any other assessment जो यूनिवर्सिटी और आपकी टीचर की डिस्क्रेशन पे हो सकता है। This is how my marks are weighed. Okay, how will you prep for it? Macro के अंदर बेटा notes are extremely important. Extremely important. क्योंकि अगर आप नोट्स आपके पास नहीं है तो आप रिविजन कहाँ से करोगे, चीजें कहाँ से करोगे, तो नोट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यू कैन टेक अ प्रिंट, माई सजेशन इज टू डू दिस, क्योंकि प्रिंट आउट लेके जब आप उसको पढ़ने बैठते हो वीडियो के साथ साथ, तो वहां पे साथ में लिखना सेक्शंस में आसान होता है। सो माई सजेशन इज दैट, बट आई सीन यू किड्स एंड यू गाइस आर वेरी टेक savvy also, तो अगर आपको प्रिंट नहीं भी लेना, आप उसको साथ में खोलो, लेकिन आप उसको एनोटेट जरूर करो। The amount of numericals that there are here are very, very less. Micro is completely numerical.
मैक्रो के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होते, विच इज वाई आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थ्योरी हैवी पेपर है। क्योंकि ये थ्योरी हैवी पेपर है इसीलिए आपको सब कॉन्सेप्ट्स याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज समझ में आना, आप किस तरीके से लिखोगे, वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑफ कोर्स द सेम थिंग आई हैव डन, यू विल हैव एन इंडेक्स विद एन एक्सेल जिसके अंदर आपके वीडियोस जो हैं वो कॉन्सेप्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आपको लगता है किसी चीज में कंफ्यूजन है, यू कैन गो बैक एंड डू एग्जैक्टली दैट वीडियो सो दैट इट्स इजी टू रिवाइज। इंडेक्स विल हेल्प यू रिकॉल ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव टू डू, लेकिन आपको नोट्स जो है बेटा वो अपने प्रॉपर हमेशा रखने हैं। मैक्रो की ट्रिक होती है कि जितना आप उसको बार बार पढ़ोगे उतना ही वो आपको रिटेन होता जाएगा। सो इट इज बेस्ट टू टू सॉर्ट ऑफ स्टडी इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। इसके अंदर आप सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हो। सो इफ यू फील दैट यू हैव लेसर टाइम, यू वांट टू लीव आउट समथिंग, नॉट पॉसिबल बेटा। कोई भी यूनिट लीव आउट करोगे 30 मार्क्स स्ट्रेट अवे गॉन, सो नॉट पॉसिबल एट ऑल। सजेशन इज कि थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहोगे तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा इन द लॉन्ग रन। So I'm going to start with chapter 6 in the next class. I will see you then.